سینا کالج اسٹوڈنٹ ہیں آج آپ کو سلیکٹ کیا ہے یہاں سے اپنے کارڈ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. میرا نام ہے ڈاکٹر پربھات رائی قاسم, چیف میڈیکل افسر BHO پچھلے 20 سال سے. ہماری BHO وعدہ قانونی ہے 1973 لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ صرف وعدہ قانونی سے یہاں اس میں ہر جگہ سے کلیش حوضی کے لیے برانڈزئی یہاں تک کہ کچھ ایسے پیشنٹ جو یہاں پہ فائدہ ہو جاتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بولتے ہیں جو سریاب سے بھی آتے ہیں بندیلی سے بھی آتے ہیں یعنی کسی جگہ سے بھی آ سکتے ہیں. باقی ہمارے پاس جو اسٹاف ہے تقریباً 22 بندوں کا اسٹاف ہے. 22 بندوں کا ہمارے پاس اسٹاف ہے, 20 بندے. اس میں سے جو 14 بندے ہیں وہ گورنمنٹ کے یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے, اور باقی جو 6 بندے ہیں وہ PPHI کے. PPHI کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے, پیپلز پرائمری ہیلتھ انیشیٹو ایجنسی, اور گورنمنٹ کی آپ پتہ ہے گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. باقی یہاں پہ 3 ڈاکٹر ہیں, ایک میں ہوں, ڈاکٹر صاحبہ ہے وہ بھی چیف لیول میڈیکل سر ہے, ایک ہمارے پاس سینئر میڈیکل سر ہے وہاں پہ سناوار صاحب, یہ 3 ڈاکٹر ہیں. باقی 2 ایک MT ہے وہ آپ سب میں صاحب, ایک فیمیل FMT ہے وہ ٹریننگ پہ گئی ہے IDS پہ ایڈ کریں گے. ہم لوگ جو ڈیزیز آتے ہیں اس کی ٹریننگ ہے گاڑی میں وہ وہاں پہ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک ہم لوگ کا MT ہے وہ ہے PPHI سلیم, اس کی ڈیوٹی لگی ہے حجی کے حقیق. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 ویکسینیٹر ہیں اور 2 چوکیدار ہیں, ایک اور پھر لیب کا بھی ایک بیٹا لیب اسسٹنٹ ہے اور ایک بیٹا اسسٹنٹ. تو ٹوٹل یعنی 20 تقریباً ہمارے پاس یہاں پہ اسٹاف. نرس یہاں پہ ہوتا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر BHO وغیرہ میں صرف LHP FMT ڈائی اس طرح کے نرس انہوں نے ابھی تک اس طرح کوئی پوسٹ انہوں نے کریٹ نہیں کی. ہو سکتا ہے نیڈ تو ہے بالکل ڈیمانڈ دیا نہیں ڈیمانڈ ہم کیونکہ کسی بھی کوئٹہ میں تقریباً 46 BHO ہے, کسی BHO میں کوئی نرس نہیں ہے, یا RHC جو BHO سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے رورل ہیلتھ سینٹر جس میں OPD بھی ہوتا ہے اور ایڈمیشن بھی ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی نرس نہیں ہے. ہم لوگوں نے یہاں اس آپ سے پہلے بھی ایک وزٹ والے آئے انہوں نے کہا آپ نے کیوں ڈیمانڈ نہیں کیا. میں نے کہا ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ فی الحال ادھر ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ان کو زیادہ پتہ ہے, شاید ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے سر. میڈیسن تو میں بتاؤں میڈیسن بہت کم ہے, یہ میرے پاس لسٹ پڑا ہوا ہے, یہ ہماری OPD ہے آپ چیک کریں. 1700 2000 1965 2003 اور یہ اس سال کا ہے 24 کا 1909 1931 2117 اپریل میں بھی تقریباً 2050 منتھلی تقریباً دن کے بن جاتا ہے 90 95 یا 100. تو اس حساب سے ہمیں جو دوائی دیتی ہے یہ لسٹ ہے آپ لوگ دیکھ لیے. ٹوٹل 99,000 کا ہے, وہ بھی 2 مہینے یعنی 54,000 ایک مہینے کے. 54,000 میں یہ دوائیں ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے میں اور ہمارے میڈیکل ٹیک میں بیٹھ کے, کیونکہ یا تو ہم لوگ کو 2 طریقے ہیں, یا تو 4-5 دن میں سارا ختم کر لیں پھر آرام سے بیٹھے, یا پھر پورا مہینہ دوائیں چلیں. تو پورا مہینے کے ڈیلی کے حساب سے جو ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سیرپ فارم میں ٹیبلٹ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. ایموکسل سیرپ ٹوٹل 2 دانے پر ڈے آپ بتاؤں میں کدھر سے سیپٹرال 2 دانے, پیناڈال 1 دانہ, زنک جو دست کے لیے 2 دانے, پلمونل کھانسی کے لیے 3 دانے, پولیبیان میٹرل جمع کے ساتھ 3 دن. اور یہ ہوتی ہے. آپ بتائیں اکثر یہاں پہ مریض آپ کے چھوٹے والدین سے بیٹھتے ہیں کہ کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھر ہم لوگ یہاں پہ OPD کے لیے بیٹھے ہیں, چیک اپ کے لیے بیٹھے ہیں. باقی دوائیاں تو گورنمنٹ کی مرضی جتنا دوائیں دیں گے ہم آپ کو دیں گے. اس کے علاوہ بھی میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ہر جمعرات کو آج بھی ہے وہ شوگر والا ہے وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے مفت میں, اور اس کے بعد اگر کچھ دوائیاں ہو اس کے پاس ہے وہ بھی لوگوں کو دے دیتا ہوں. یا کبھی کبھی نیشنل پروگرام ہوتے ہیں اس میں میں دوائیاں دے کے ان کو دیتا ہوں. لیکن دوائیاں بہت کم ہیں. یہ لسٹ ہے اور یہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جتنے بھی ہے DHO صاحب ہے, ہمارا PPHI کے DSM صاحب ہے, DC صاحب آئے تھے, اس میں DD صاحب آئے تھے, سب کرنا تھا کیونکہ انہوں نے خود اس BHO کو ایز ماڈل BHO بنایا اور یہ کیٹیگری دی ہے A+. اس میں پیشنٹ زیادہ ہو, رش زیادہ ہو, ریشو زیادہ ہو, یہ دوائیاں بہت ہی کم ہے.
दिया है, लिख के दिए है, लिख के दिए वर्बली सबको बोले डीसी को, बीएचओ को, बीएचओ जो सब बीएचओ के हेड है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डीएसएम जो पीपीएचआई का बड़ा होता है उसको क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर, उसको क्या है डीसी साहब जो विजिट रहते हैं वो क्या डीजी साहब डायरेक्टर जनरल है तो वो क्या है सबको क्या है। सर आपने सर वर्बली कहा है नहीं रिटर्न में भी रिटर्न कॉलेज। बाकी पेशेंट वैसे यहाँ किस तरह के सीजनल आते हैं, जैसे आजकल ज़्यादातर ड्राइविंग करते हैं जस्ट वगैरह उल्टी वाले बुखार वाले या कुछ सांस का मसला है वो खांसी वगैरह किस तरह का, और इसके अलावा हाइपरटेंशन उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है ना जी, ओरल फॉर्म में है इंजेक्शन नहीं ओरल में भी है इंजेक्शन फॉर्म में ऐसा कौन कौन सी इंजेक्शन थर्ड जनरेशन अच्छा सर अगर मतलब आते हैं पेशेंट आप सिर्फ उसको स्ट्रेट डोज देते हैं या आप भी देते हैं कोशिश ये आप मैं पहले कोशिश पूरा करूँ। अच्छा बहुत अगर टेस्ट तो इधर सीरियस आता कोई नहीं है, अगर घर से भी आ नहीं जाए फिर हम लोग उसको इंजेक्शन करते हैं स्ट्रेट डोज स्ट्रेट वही हमने कहा पीपीएचआई ने हम लोग को वही जो चीज़ें दी उसके बाद यहाँ तक कि हम लोग कभी कहा कि कोई आप इस तरह करोगे तो शुगर बेटर बाजार में 100-150 हम लोग आधे पे करने भी 50 मरीजों से लेंगे, फिर किसी दवाइयों से किसी पैसे से हम लोग और स्टिप वगैरह भी लेंगे और चीज़ें भी वो नहीं मानते थे, तो जो बात आप लोग बात करें वो भी नहीं मानते, जो मशवरा देते वो भी नहीं मानते। फिर मैंने यहाँ तक कहा कि जो ओपीडी स्लिप है तो इसमें से 100-105 जो मरीज आते हैं इसमें से अक्सर 50% ऐसे मरीज होते हैं जो मरीज नहीं होते, जैसे दवाइयाँ कलेक्ट करने के लिए उसके लिए मैंने कहा सब 5 पे आप इस पर्ची लगा दें, हम लोग बोलते हैं इजाज़त दे दें 5% में पर्ची कर दो 100 में से 50 या 40 जो वाकई में मरीज होते हैं उसके लिए दवाई भी सही होने के बराबर होगी, उसके मालूम लेने की जरूरत नहीं। इस वजह से उन्होंने जो चीज़ें दी हमने डिमांड किया, सिर्फ अभी भी मलेरिया का कुछ खत्म है, टाइफाइड भी खत्म है और टाइफाइड BC जो सारे यहाँ पे टेस्ट होते हैं, TB के PT प्रेगनेंसी ये सारे टेस्ट होते हैं। आपको पता है कोटा को वाइट बीचू यहाँ पे नेटवर्क भी बैठे और यहाँ पे स्केलिंग वगैरह भी करते हैं, फीलिंग वगैरह भी करते हैं। बाकी ये कि अगर ये करना उसका ये सामान वो खुद लाए वो पूरे बलूचिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट हमारे इस BHU में 2008 में यहाँ पे उसको कहते हैं हेल्थ टेली सिस्टम, यानी यहाँ पे वो ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंट है उनका अल्ट्रासाउंड करती है तो उनको आपको पता है स्क्रीन में जो LHV है उसको नजर आता है और फिर डायरेक्ट एम्स अस्पताल इस्लामाबाद जी 2008 में सबसे पायलट प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में इसी BHU से स्टार्ट हुआ। अभी तो काफ़ी जुमों पे है लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे फिर अस्पताल में लेती डॉक्टर है वो वहाँ पे देखती है कोई और मसला हो तो उसको बताती है क्या करेंगे। बाकी वैक्सीन आपने देखा कोटा के सारे वैक्सीन वगैरह यहाँ पैदाइश से लेकर 13 महीने तक जितने बच्चे उनको सारे वैक्सीन होते हैं, और ये शुक्र है कभी भी इस तरह नहीं वो वैक्सीन हम लोग कोशिश नहीं करते कि जैसे ही खत्म होने वाला होता है उससे पहले हम लोग जो हमारे EPI सेंटर है वहाँ पर डिमांड कर लेते हैं तो वो बेचारे में दे शुक्र आज तक कभी इस तरह नहीं कि कोई आया बहुत ही शादी नागर अगर कभी कभी BCG कभी कम हो जाता है जो पैदाइश के फौरन बाद कभी कभी क्योंकि वो बहुत महंगा भी है, वो एक डोज कितने 20 बच्चों का और वो लगभग 15-20 हज़ार वो कभी कभी अगर वो भी 20 साल से सोचो 1 या 2 दफे से हुआ कि वो पूरा कोयटा भी ही नहीं करा इस वजह से तो हमने इसके अलावा हम लोग वैक्सीन पहले से ही मंगाया। आपको जो भी पेशेंट आते हैं इस सिस्टम से आपको मैं देखो अपनी तरफ से कोशिश ही मेरा ज़मीन मकबूल में शुक्र है, मैं खुद भी आता हूँ, मेरे साहब भी आते हैं, मेरा स्टाफ भी आता है, यानी अल्लाह की मेहरबानी इस विस्तार में कभी भी हमारे कुछ शिकायत BHO ऑफिस या DSM ऑफिस आप पूछ भी सकते नहीं गए या कोई इस तरह हो कि बिल्कुल BHO आप आ जाएँ बंद हो, इस तरह आपको कभी नहीं मिलेगा। अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छा इज्जत दें, मरीज़ों को चेकअप भी करें, दवाइयाँ भी अगर व्यवस्थ में हो तो दवाइयाँ भी दे देते हैं। बाकी पेशेंट से आप खुद कुछ अक्सर तो आते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूँ जिधर किसी को कोई चीज़ मिलता है या फ़ायदा होता है वहीं पर हो जाते हैं, वरना एक जगह एक दफ़ा अगर आप नहीं दें दूसरी दफ़ा नहीं दें बेइज्जत करें कभी भी नहीं है। तो माशाल्लाह तैयार रश और अभी भी देख रहे हैं तो इसका मतलब यही कि वो सेटिस्फाई, बाकी आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं। दवाइयों को मैं आपको पहले से अभी से बता दूं कि दवाइयाँ नहीं है, जब मैं नहीं हूँ मैं
कभी कभी अपने जेब से भी दे सकता हूँ, लेकिन इतना तो नहीं है कि बार बार मैं अपनी जेब से दूँ। और दवाइयाँ भी आपको पता कितनी महंगी है, हर चीज़। सिंपल अग्मेटिन पहले था 160-200 DS, अभी वही सिरप 550 का हो गया। आप उस हिसाब से दवाइयाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ताउन करे या कुछ यूज करें इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये भी हमारा पोलियो कैंपेन के लिए अली साहब है, यहाँ पर इंचार्ज है, उनकी टीम है। पोलियो भी माशाल्लाह हमारे इस इलाके में 1989 से मतलब स्टार्ट हुआ पोलियो प्रोग्राम, लेकिन इस एरिया में इसको कह नहीं कहते हैं, यहाँ पे कोई पोलियो का केस नहीं है, शुक्र, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन सब बच्चों को हम लोग खिलाते हैं। ये लोग भी माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं, हमारे वैक्सीनेटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे पोलियो का कोई केस इस यूसी में, कोयटा में बहुत केसेज हुए, लेकिन इस यूसी में टेनी में नहीं हुआ। ये भी आपको पता है कि काम की वजह से, क्योंकि पोलियो को आपको पता है ऐसा कंप्लेन है कि उसमें एक के ऊपर दूसरा मरना चाहिए, दूसरे के ऊपर तीसरा मरना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं हमारे हेल्थ की तरफ कि उसमें मरना चाहिए कम होता है, लेकिन इन पे आपको पता है मरना चाहिए बहुत ज़्यादा होता है।